In this video, we are going to talk about something very interesting and the fact that it is highly ignored by a lot many investors, no matter what's their level of experience, no matter what's their level of knowledge. तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ की एस्पेक्ट्स की जो कि साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स मानी जाती हैं इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिंग. Let me tell you, these psychological mistakes in relation to investing are very common across the globe. And these are also called as emotional biases that impact the decisions of those who invest. Either you're investing for long term or short term, you may get affected highly by these psychological mistakes. So let's decode each psychological mistake one by one. The first one is fear and greed. Yeah. Why it matters a lot? Because financially sound companies can survive the economic downturn and grow steadily. This is a major assumption understanding when it comes to investing in the market. However, market is completely unpredictable. कोई भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो इन्फोसिस जैसी कंपनी हो, टीसीएस जैसी कंपनी हो, रिलायंस जैसी कंपनी हो या नेस्ले जैसी कंपनी हो. जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, then there are high chances कि ये financially sound companies भी 20% करेक्ट हो जाए. एंड इसका क्विक एग्जांपल आज ही की तारीख में हम देख सकते हैं. सो इन्वेस्टर्स ऑफन बाय स्टॉक एट हाई प्राइसेस बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय ग्रिड कि ठीक है, इससे नीचे तो क्या ही मार्केट गिरेगा, इससे ऊपर तो क्या ही उठेगा, सेल कर देते हैं, बाय कर लेते हैं. सो अल्टीमेटली when you buy or sell stock out of fear or greed, it could definitely result into losses. Excellent example, which I think many of you can relate, is the COVID-19 pandemic, right? So the COVID-19 pandemic hit hard to the financial market and all the majority of the investors in the stock market because कहीं ना कहीं बहुत fear था कि पता नहीं अब इसके बाद में market किस direction में जाएगा. So ultimately many investors actually sold off majority of their stocks. Many traders faced huge losses because they couldn't cope up with this pandemic, right? And because of fear that the market will touch more bottoms, they lost a lot of their wealth by just selling these stocks, right? The next is understanding the second important psychological bias. It is over trading. ऐसा काफी सारे इन्वेस्टर्स मानते हैं जितना फ्रिक्वेंटली वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे उतनी अच्छी, उतनी ज्यादा वेल्थ बनाएंगे. पर आपको क्या लगता है कि ओवर ट्रेडिंग विल डेफिनेटली रिजल्ट इनटू wealth creation in stock market? If I give the answer in simple words, the answer is no, not at all. If you frequently buy or sell stocks, आपको एक brokerage charges देना होगी, higher level पे there is the transaction charges. Apart from that, you will also face इमोशनल स्ट्रेस बिकॉज कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रहेगी कि नहीं नहीं ये स्टॉक इससे नीचे गिर सकता है, शायद ये स्टॉक इससे ऊपर जा सकता है शायद. तो वो एक फेयर हमेशा रहेगा साथ में और उस कारण आप ओवर ट्रेडिंग में इंडल्ज रहेंगे. ठीक है, कई बार क्या होता है जैसे ब्रोकरेज हाउस आपको लो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, लो कॉस्ट ब्रोकरेज, तो आप सोचते हैं कि चलो लेट्स टेक द बेनिफिट ऑफ लो कॉस्ट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स और ओवर ट्रेडिंग में लग जाते हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. थर्ड इज कंफर्मेशन बायस. अब ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा जा रहा है. कई बार हम किसी स्टॉक पे इतना पॉजिटिव होते हैं, हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम किसी भी तरीके से उस स्टॉक के लिए कंफर्मेशन ढूंढते हैं. However, we fail to notice any contradictory data which can actually turn our investment decisions into poor investment decisions. मान लीजिए आप से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में काफी पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं, राइट, बट ओवर वैल्यूएशन की पोटेंशियल साइंस आप वहां पर इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज यू आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कि नहीं एक न्यूज और अच्छी आ गई तो अब ये स्टॉक और बूम करेगा. बट ऑलरेडी अगर ओवर वैल्यूड है, आज की तारीख में अगर हम एग्जाम्पल देखें, इन्फोसिस, ट्रेंड, पावर इंडस्ट्रीज, ये ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर लोग ओवर वैल्यूएशन दैट इज ओवर एंड अबव बुक वैल्यू जो करंट प्राइस चल रही है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, पी वैल्यूएशंस को इग्नोर कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द न्यूज एलिमेंट एंड बाइंग एट अ हायर प्राइस. सो that's what the confirmation bias is. The next one is the herd mentality, that is following the crowd without conducting individual research. Just as say, half an hour back I received a call from one of my colleague that I have 50,000 rupees today as of now. Can you give me quick tip to invest right away? Now, this type of tip and this type of investment without doing your own research is like following the herd. हो सकता है कि मुझे लगता है कि ब्रिटानिया अपने ऑल टाइम लो पर है या एचयूएल अपने ऑल टाइम लो पर है, पर हो सकता है, ये मेरा मानना है क्योंकि मेरे जैसे 10 लोगों का भी ऐसा मानना है जिनमें मैं बिलीव करती हूँ. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मैं किसी हर्ड को फॉलो कर रही हूँ और मुझे देखते हुए मेरी कॉलिग जिसने मुझे कॉल किया था वो भी हर्ड को फॉलो कर रही है. सो इट्स लाइक अ हर्ड मेंटालिटी बीइंग फॉलोड फॉर बाइंग और सेलिंग स्पेसिफिक स्टॉक्स. एंकरिंग बायस मतलब मुझे पता है कि पास्ट में इस स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा रहा है, तो करंट वैल्यूएशन जो भी हो, इट्स ओके, let's buy this stock. This could be as good as Reliance,
रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी स्टॉक प्राइसेस लास्ट 1.5 to 3 months से वही 1150 से 1300 की रेंज में ट्रेड कर रही है। आई एम सो बुलिश ऑन दैट स्टॉक की नहीं, मैंने तो उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और मैं इन्वेस्ट करके पिछले 3 महीने से उसी स्टॉक में अपनी सारी होल्डिंग लेके बैठ गई हूँ। तो इट मीन्स दैट आई एम नॉट कंसिडरिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, looking to the facts, looking to the fundamentals and technicals, but I'm so anchored, so attached that, like Ambani's company can't go negative. Ambani's company is going to give good returns over a period of time. It's a strong company. It is going to drive the whole stock market. I'm so anchored, so attached to that. And that's how I'm getting, you know, totally carried away with this bias called as anchoring bias. The next one is loss aversion. Loss aversion means tendency to prefer avoiding losses over acquiring equivalent gains can result in holding onto losing the investments too long. Means what? Means I'm holding सबसे पहले तो स्मॉल कैप के स्टॉक, और वो भी स्टॉक्स मैंने बिना किसी रिसर्च के परचेस कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ इट। अब पहली बार मुझे 5% लॉस हुआ तो भी मैंने स्टॉक को पकड़ के रखा कि नहीं, आज हुआ है, कल हो सकता है इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद में वो 5% का लॉस 8% में कन्वर्ट हो गया, 8% का लॉस 10% में कन्वर्ट हो गया। और जब मार्केट में ये ब्लड बात चालू हुआ तो ये स्टॉक 25% माइनस में चला गया। मतलब व्हाट आई डिड हियर, लॉस 5% ना हो उस चक्कर में उस स्टॉक को मैंने पकड़ के रखा, और इसके चलते मुझे 25% तक का अनरियलाइज्ड लॉस मेरी बुक्स में देखने को आ रहा है। सबसे पहले कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं थी, वो कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ साथ उसके टेक्निकल्स भी खराब थे, और कंपनी के पास में बहुत सारी कंप्लायंसेस रिलेटेड इश्यू थे। ये सब मैंने नहीं देखा समझा, बिकॉज आई वाज इमोशनली बायस्ड ऑन दैट स्टॉक बिकॉज ऑफ द लॉस अवर्शन, राइट? Next is the recency bias, which says that giving undue weight to recent event can distort the long-term investment strategies. अगर आप एडा से कंपनी के स्टॉक प्राइसेस देखेंगे तो लास्ट 1 मंथ में 26% स्पाइक लेके आए हैं। अब 26% स्पाइक को देखकर क्या मैं इसे लॉन्ग टर्म स्टॉक के रूप में कर लूं? इज दिस अ गुड वे? नो, आई नीड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। और जब मैंने फंडामेंटल्स देखे तो मुझे पता चला कि कंपनी के ऊपर काफी सारा लोन है एज कंपेयर टू द इक्विटी। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत पुअर है, और कंपनी के ऐसे कोई ग्रेट प्रॉफिट्स भी नहीं हुए हैं अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूं। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने रीसेंट न्यूज को इतना ज्यादा वेटेज दे दिया कि हाँ 26% स्पाइक हुआ है 1 महीने के अंदर, तो ये आगे स्टॉक की प्राइसेस विल डेफिनेटली गो ऑन अ पॉजिटिव साइड, राइट? सिमिलरली एक छोटा सा ऑर्डर मिलने के कारण स्टॉक प्राइसेस में स्पाइक आ गया, और मैं उस ऑर्डर से रिलेटेड न्यूज पे इतनी ज्यादा बायस्ड हो गई कि नहीं, तो इस स्टॉक में मुझे रैली ही मिलेगी, राइट? सो दिस कुड बी अ केस ऑफ रिसेंसी बायस वेयरइन आफ्टर अ शॉर्ट टर्म मार्केट रैली, जैसे लास्ट 2 वीक्स में एडा के शेयर में आप रैली देख सकते हैं, इट इज ऑन द पॉजिटिव साइड ग्रो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ कंटिन्यूस ग्रोथ इस स्टॉक में अब लगती है, क्योंकि 2 बार से तो लास्ट 2 वीक से तो ये स्टॉक पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है। बट नो, आई एम इन्फ्लुएंस्ड हाईली बाय दिस रिसेंसी बायस। नेक्स्ट इज द ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे कॉन्फिडेंस है स्टॉक पर, और वो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस कन्वर्ट हो जाता है कोई नहीं जानता। एंड बिकॉज ऑफ दैट the recent bloodbath happening in the stock market in small caps and mid caps is the result of overconfidence of the individuals who are invested in those stocks, because they had not done their research and they're waiting that loss aversion उनके पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं, I have gut feeling कहीं से कि हाँ इस स्टॉक की प्राइसेस पॉजिटिव साइड ग्रो करेगी। The next is FOMO। मेरे आसपास सब लोग ऑफिस में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो हाउ इट विल वर्क, राइट? सो fear of missing out of any investment opportunity also results into one of the psychological, or I can say emotional mistake done by a lot of investors, as good as anxiety of missing profitable opportunity, कि ये डिप आया है मार्केट में, ये डिप में अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो इसके बाद में कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, and this fear of missing out results into losses at times, right? So it's important for us to do our own research. The last is neglecting portfolio diversification, which is also crucial. So you are just concentrating investing in few stocks. अगर आपके पास में 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने के हैं, 2 लाख रुपए में आपने रिलायंस के स्टॉक्स ले लिए, 3 लाख रुपए में आपने अडानी के स्टॉक्स ले लिए, और आपने कहा कि मैंने अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर लिया। नो, दिस इज नॉट द वे टू इन्वेस्ट और डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। This is all about concentrating the investments in few stocks or sectors, increase the risk exposure, और वही होता है अडानी की स्टॉक प्राइसेस एक दिन में कम से कम 20% फ्लक्चुएट होती हैं। सिमिलरली रिलायंस में आप एक स्टेबल रिटर्न नहीं देख पाते हैं। सो ऑल दिस रिजल्ट्स इनटू emotional biases which holds you from right way of investing and designing into your portfolio. So before getting an understanding about the fundamentals and technical analysis, it's important to work on the psychological aspects, that is the emotional biases which we carry. So now it's your job right away to write down what are your psychological biases you feel that you are much anchored to, और आपको वो psychological biases comment box में
लिखनी है, so that I can understand what you learned and what you decided that you will not do going forward in your investing journey. So stay tuned in for the next video. List down your key takeaways and I'll see you in the next one. Thank you.